Hello everyone, welcome back to Kamlesh Sir's tutorial. I am CA Kamlesh Bhatt and today I'll be teaching objectives of Maths SYJC Paper 2, chapter name Linear Regression. I hope you all must have seen objectives of chapter number 1 and chapter number 2 and understood it properly. Now I'll start with third chapter's objectives. Let's start with the chapter. आ जाइए, see, linear regression chapter. Okay. First objective क्या है? Regression analysis is the theory of estimation, prediction, both A and B calculation. देखिए, linear regression chapter में होता क्या है? Basically, we have two types of equation. One is y on x, जिसका equation है y is equal to a plus bx, और एक होता है x on y, जिसका equation है x is equal to a dash plus b dash y. इस चैप्टर में होता क्या है? When we use y on x equation, तो हमें x का वैल्यू दिया रहेगा. With the help of x, we can find out y. या अगर हम x on y यूज करेंगे, तो with the help of value of y, we can find value of x. तो बेसिकली एक वैल्यू दिया रहेगा और हमें दूसरा वैल्यू फाइंड करना है. तो इन दिस चैप्टर वी एस्टिमेट, वी प्रिडिक्ट वैल्यू ऑफ y if x is given और वैल्यू ऑफ x if y is given. तो इसका आंसर है both A and B. Regression analysis is the theory of estimation and also prediction. Next one. We can estimate the value of one variable with the help of other known variable only if they are correlated. Meaning हम x and y का equation बना सकते हैं only if the variables are correlated. For example, suppose अगर x है hours that you put in for study, और y है marks that you secure in exam. तो ये दोनों variables are correlated. जितना ज्यादा एफर्ट्स डालोगे, जितना ज्यादा आवर्स पुट इन करोगे फॉर स्टडीज, उतना ज्यादा मार्क्स आएगा. तो बेसिकली दीज टू थिंग्स आर कोरिलेटेड. तो अगर वो कोरिलेटेड है तो ही हम उसका इक्वेशन बनाएंगे या बना सकते हैं. दैट मेक्स सेंस. So we can estimate the values of one variable with the help of other known variable only if they are correlated. Next one. There are dash types of regression equations. There are two types of regression equations जो हमने यहाँ पे लिखा है. Y on x is one, type 1, and x on y is type 2. There are two types of regression equations. Next one. In the regression equation of y on x, okay, see, fourth and fifth connected है. फोर्थ एंड फिफ्थ ये दोनों कनेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स हैं. ये जो इक्वेशन है y on x, इसमें we can find the value of y if value of x is known. तो that means y, calculation of y depends on x. तो x को बोला जाता है this is independent variable, and y is dependent variable, क्योंकि calculation of y depends on x. Similarly x on y में y is independent variable, and x is dependent variable. इन शॉर्ट जो लेफ्ट में टर्म होता है, जो लेफ्ट में वेरिएबल है, दैट इज डिपेंडेंट, एंड जो राइट में वेरिएबल है, दैट इज इंडिपेंडेंट. क्वेश्चन में क्या लिखा है? इन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x, तो y on x इज y इक्वल टू a प्लस bx. तो जो लेफ्ट का टर्म होता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द राइट का टर्म. तो इन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x, y जो होता है वो इंडिपेंडेंट, y इज डिपेंडेंट. तो y इज डिपेंडेंट, आंसर इज a. x is independent, ये जो है this is independent, and y जो है that is dependent variable. Next one. Similarly in the regression equation of x on y मतलब x is equal to a dash plus b dash y. लेफ्ट का जो वेरिएबल होता है that is always dependent. So x is dependent and y is independent. Option is B. x is dependent and y is independent. I'll repeat. लेफ्ट का जो वेरिएबल होता है that is dependent. Next one. BYX, ये दोनों कनेक्टेड है. BXY एंड BYX. व्हाट इज BXY? BXY को बोला जाता है इट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y. पहले x है फिर y है, तो इट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y. एंड सिमिलरली BYX क्या है? इट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x. सॉरी, इट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x. जो पहला होता है x on BXY लिखा है, तो इट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x on y.
और अगर बी वाई एक्स लिखा है तो इट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। नेक्स्ट वन, आर। आर बेसिकली क्या होता है? आर इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। दो चीजों का रिलेशन जो होता है वो होता है आर। फॉर एग्जाम्पल इफ आर इज वन, इसका मतलब हाउ डू वी रीड इट? उसका मतलब होता है कि दे आर परफेक्टली कोरिलेटेड, विच मीन्स अगर x 10% बढ़ेगा तो y भी 10% बढ़ेगा। एग्जैक्टली वन है कोरिलेशन। इन शॉर्ट r क्या होता है? r इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। नेक्स्ट वन, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ये क्या होता है? देखिए, देयर इज अ फॉर्मूला फॉर आर। आर का फॉर्मूला होता है प्लस और माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ये आर का फॉर्मूला होता है। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? रूट निकल जाएगा, तो इट विल बी बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। और स्क्वायर होगा तो ऑब्वियसली ये प्लस ही होगा, तो आर स्क्वायर इज बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स क्या होता है? आर स्क्वायर। नेक्स्ट वन, इफ बी वाई एक्स इज ग्रेटर देन वन देन बी एक्स वाई शुड बी लेस देन वन। अगर एक रिग्रेशन कोइफिशिएंट से बी वाई एक्स अगर ग्रेटर देन वन है तो सेकंड रिग्रेशन कोइफिशिएंट लेस देन वन होगा। बिकॉज आर का प्रॉपर्टी होता है इसमें सी, आर जो होता है आर का वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1। इट के नॉट क्रॉस वन या -1। वन से ज्यादा नहीं हो सकता, या सिमिलरली -1 से भी लोअर साइड नहीं जा सकता है। तो आर ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1। अगर मैं इसे नंबर लाइन में दिखाऊं तो इट इज दिस वे, 0 1 2 -1 -2। तो आर का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज इसके बीच में होगा। इट कैन नॉट एक्सीड दिस साइड और सिमिलरली इट कैन नॉट गो दिस साइड। इट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1। तो इसीलिए क्या होता है, जो आंसर होगा मल्टीप्लीकेशन, ये इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा इट हैज टू बी लेस देन वन। तो अगर बी वाई एक्स इज ग्रेटर देन वन तो बी एक्स वाई लेस देन वन होना चाहिए। सिमिलरली अगर बी एक्स वाई ग्रेटर देन वन है तो बी वाई एक्स लेस देन वन होगा। ओनली देन आंसर -1 +1 के बीच में आएगा। फाइन, आई जस्ट रिपीट इट। हाँ, इफ बी वाई एक्स इज ग्रेटर देन वन देन बी एक्स वाई शुड बी लेस देन वन। तो ही आर इक्वल टू वो जो हमने डिस्कस किया -1 एंड +1 के बीच में वैल्यूज आएगा, ओनली देन इट इज पॉसिबल। नेक्स्ट वन, 11th। इसका भी एक फॉर्मूला है, बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स मॉड्यूलस द होल अपॉन 2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस आर। ये इसका फॉर्मूला है। सो विच मीन्स व्हाट इज बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स मॉड्यूलस? इट इज 2 मॉड्यूलस आर। सो दिस इज द आंसर, 2 मॉड्यूलस आर। नेक्स्ट वन, 12th। ये ऑब्जेक्टिव थोड़ा डिस्कशन करने जैसा है, मैं थोड़ा इसमें टाइम लूंगा। बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर, ये क्या होता है? देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। सपोज इफ देर आर टू वैल्यूज, टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, और ये नंबर्स बड़े हैं, फॉर एग्जांपल 60 70 72 85। सिमिलरली वाई है 45 42 41 36, कोई भी नंबर्स ले रहा हूं। अगर हम एक्स बी एक्स वाई कैलकुलेट करेंगे तो नंबर्स काफी बड़े होंगे, नंबर्स काफी बड़े होंगे। अगर हम बी एक्स वाई कैलकुलेट करेंगे तो नंबर्स काफी बड़े होंगे, तो इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। इसलिए इन दिस सिनेरियो हम क्या करते हैं, हम नंबर्स को छोटा करते हैं। कैसे करेंगे? हम एक्स को कन्वर्ट करते हैं यू में। एक्स को हम कन्वर्ट करेंगे यू में। यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी। इन शॉर्ट, हम कोई भी नंबर, ए यानी कोई भी नंबर हो सकता है, और सी भी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है हम जिससे डिवाइड करें। सिमिलरली वाई को हम कन्वर्ट करते हैं वी के फॉर्म में, वेयर v इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन डी। इस तरीके से नंबर्स थोड़े छोटे हो जाएंगे। डिवीजन करना कंपलसरी नहीं है, हम खाली सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं टू मेक द नंबर स्मॉलर। जरूरी नहीं है कि डिवाइड करना है सी एंड डी से। फाइन। तो दिस वे एक्स एंड वाई जो बड़े नंबर्स हैं वो यू एंड वी के फॉर्म में छोटे नंबर्स हो जाते हैं और कैलकुलेशन काफी सिंपल हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसके हेल्प से हमें मिलता है बी एक्स वाई।
और ये जो नंबर्स बनेंगे इसके हेल्प से हमें मिलता है बी यू वी या बी वी यू, जो फाइंड करना है। और सिमिलरली हम यहाँ पे बी वाई एक्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो इन दिस वे वी फाइंड द नंबर्स। अब हम डिस्कस करेंगे रिलेशन, इसके और इन के बीच के रिलेशन डिस्कस करेंगे। तो उसमें एक सिंपल फॉर्मूला है, बी एक्स वाई इज इक्वल टू बी एक्स वाई इज इक्वल टू बी, एक्स के जगह पे हम यू लिखेंगे और वाई के जगह पे वी लिखेंगे। एक्स के जगह पे यू लिखेंगे और वाई के जगह पे हम वी लिखेंगे। और इन टू, देखिए हम जब x को u में कन्वर्ट करते हैं तो हम c से डिवाइड करते हैं, और हम जब y को v में कन्वर्ट करते हैं तो हम d से डिवाइड करते हैं। दिस इज व्हाट वी डू। तो u कनेक्टेड है c से और v कनेक्टेड है d से। तो यहां पे पहला है x या u, तो हम पहले c लेंगे और फिर नीचे डिवाइड बाई d। दिस इज बेस्ट वे टू रिमेंबर। सिमिलरली बी वाई एक्स क्या होगा, बी वाई एक्स इज बी, पहले y है तो मैं v लिखूंगा, फिर x है तो मैं u लिखूंगा, इनटू पहले v है तो v से क्या कनेक्टेड होता है d, और u से क्या कनेक्टेड होता है c। तो दीज टू फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में भी। दीज टू फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट। फाइन, मैं स्टार्ट करता हूं। हाँ, तो देखिए, तो अगर मैं सपोज, अच्छा ये पहले 12th के पहले मैं 13 देख लें। देख हमने 13 डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। इफ u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी एंड b इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन डी, देन बी वाई एक्स इज बी वाई एक्स। तो बी वाई एक्स होता है, पहले बी वाई है तो v, एक्स है तो u, एंड इन टू पहले v है तो d और u के जगह पे c। तो दिस इज द आंसर, d अपॉन सी बी बी यू ए। एंड 14th का सिमिलरली बी एक्स वाई, तो बी एक्स वाई तो पहले एक्स है तो एक्स के जगह पे यू, वाई के जगह पे वी, एंड क्योंकि पहले यू है तो ऊपर सी और नीचे डी। तो सी अपॉन डी बी यू वी, बी इज द आंसर। 12th वन डिस्कस करते हैं। अभी सपोज मैं एक्स और वाई सपोज बड़े नंबर्स है, तो मैंने उसको छोटा करने के लिए यू क्रिएट कर दिया, एक्स को यू में कन्वर्ट कर दिया, जहां पे u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। सपोज मैं डिवाइड नहीं करता हूं, और सिमिलरली y इज इक्वल टू v इज इक्वल टू वाई माइनस बी। मैंने x को u में कन्वर्ट कर दिया और y को v में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन विदाउट डिवाइड किए। मैंने डिवाइड नहीं कर रहा हूं, मैंने खाली सब्ट्रैक्ट किया। अब सपोज अगर मैं बी एक्स वाई या बी वाई एक्स कैलकुलेट करूं विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा अगर मैं बी यू वी कैलकुलेट करूं या बी वी यू कैलकुलेट करूं, तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, इट विल बी इक्वल। इट विल बी इक्वल, मीनिंग मीनिंग बी एक्स वाई विल बी इक्वल टू बी यू वी एंड बी वाई एक्स विल बी इक्वल टू बी वी यू। इन शॉर्ट, अगर मैं खाली नंबर सब्ट्रैक्ट करता हूं, या फॉर दैट मैटर ऐड भी करता हूं, अगर अगर ऐड करना पड़े तो नॉर्मली हम सब्ट्रैक्ट करते हैं टू मेक द नंबर स्मॉलर। तो अगर मैं खाली ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे वैल्यूज सेम रहते हैं, देयर इज नो चेंज इन बी एक्स वाई एंड बी यू वी, वो नंबर्स सेम होते हैं। लेकिन अगर मैं डिवाइड या मल्टीप्लाई करूं तो आंसर चेंज हो जाएंगे, तो बी एक्स वाई एंड बी यू वी सेम नहीं रहेंगे। आई रिपीट, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं जस्ट या ऐड करूं, ऐड या सब्ट्रैक्ट, मैं यहां पे लिख के बताता हूं। अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो बी एक्स वाई और बी यू वी या बी वाई एक्स एंड बी वी यू सेम रहते हैं, देर इज नो चेंज, देर इज नो चेंज। और अगर मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूं तो ये सेम नहीं रहेंगे, दिस विल चेंज। इन शॉर्ट, प्लस माइनस करने से वैल्यूज सेम रहते हैं बी एक्स वाई और बी यू वी के, और मल्टीप्लीकेशन डिविजन करने से वैल्यूज चेंज होते हैं। इन शॉर्ट वी कैन से प्लस माइनस को बोला जाता है चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन, एंड मल्टीप्लीकेशन डिवीजन को बोला जाता है चेंज इन स्केल। तो शॉर्ट में समराइज करेंगे तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, इसको हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स बोलते हैं।
दीज आर रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, आई मीन ये पूरा दीज आर रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। तो व्हाट, तो ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन रिग्रेशन कोएफिशिएंट चेंज नहीं होते, तो वी से इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। इट इज इंडिपेंडेंट, चेंज नहीं होते मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, बट इट इज डिपेंडेंट, but it is dependent, yeah, it is not independent or due to change in scale। आई होप सबको समझा। शॉर्ट में फिर से बोल रहा हूं, प्लस माइनस करने से बी एक्स वाई बी यू वी या बी वाई एक्स बी बी यू चेंज नहीं होंगे, तो वी से इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। लेकिन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करने से वैल्यूज चेंज हो जाते हैं, बी एक्स वाई के और बी यू वी के वैल्यू सेम नहीं रहेंगे, तो वी से इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज डिपेंडेंट ऑन चेंज इन स्केल। ये थोड़ा ट्रिकी ऑब्जेक्टिव, आई होप सबको समझा होगा। तो बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स दैट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर, आंसर इज ए, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, मीनिंग प्लस माइनस से चेंज नहीं होता है, सॉरी, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल, बी इज द आंसर, आंसर बी है। ए में तो लिखा गया है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ, नहीं, बी इज द आंसर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मतलब प्लस माइनस एंड चेंज ऑफ स्केल मतलब मल्टीप्लीकेशन और डिविजन। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। आई होप दिस इज ओके। नेक्स्ट वन, कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड एक्स इज वन। एक्स का एक्स के साथ रिलेशन क्या होगा, वन है। कोवेरियंस ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई इज, आंसर है वाई एक्स। एक्स का वाई के साथ रिलेशन या वाई का एक्स के साथ रिलेशन हैज टू बी सेम, तो कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई इज सेम एज कोरिलेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। नेक्स्ट, हाँ, कोरिलेशन ऑफ x माइनस ए बाई सी एंड y माइनस बी बाई डी इज इक्वल टू माइनस कोरिलेशन ऑफ x एंड y इफ c एंड d आर ऑपोजिट इन साइन। मीनिंग क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, इसी में एक्सप्लेन करता हूं। कोरिलेशन में क्या रूल होता है, सपोज अगर मेरे पास नंबर्स है x एंड y सेम, अगर नंबर्स बड़े हैं तो मैं इनको छोटा करने के लिए इसको मैं u और v में कन्वर्ट करूंगा, u और v में कन्वर्ट करूंगा। अगर मैं इसका कोरिलेशन फाइंड करूं, u क्या होगा, x माइनस ए बाई सी, v क्या होगा, y माइनस बी बाई डी। अगर मैं इसका कोरिलेशन फाइंड करूं और मैं अगर इसका कोरिलेशन निकालूं आर यूवी, मीनिंग अगर मैं एक्स वाई के हेल्प से मैं आर एक्स वाई फाइंड करूं और यूवी के हेल्प से आर यूवी फाइंड करूं, तो इन दोनों का आंसर सेम होगा कि डिफरेंट होगा, तो इट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ सी एंड डी। अगर सी एंड डी का साइन सेम है, मैं लिख के बताता हूं, अगर सी एंड डी का साइन सेम है, सी एंड डी का साइन, सी एंड डी का साइन अगर सेम है, तो आर एक्स वाई विल बी इक्वल टू आर यू वी। लेकिन अगर सी एंड डी का साइन ऑपोजिट है, ऑपोजिट मतलब एक प्लस और एक माइनस है, तो आर एक्स वाई विल बी इक्वल टू माइनस आर यू वी। आई होप दिस इज ओके। मैं रिपीट करता हूं, अगर मैं एक्स वाई के हेल्प से इफ आई कैलकुलेट आर एक्स वाई और अब नंबर्स को छोटे करके यू एंड वी में कन्वर्ट करके अगर मैं आर यू वी फाइंड करूं, तो आर एक्स वाई और आर यू वी के वैल्यू सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे, तो नंबर्स वैल्यू सेम होगा पर उसका साइन डिफरेंट होता है। तो इट डिपेंड, सी एंड डी का साइन कैसे पता चलेगा कि सी एंड डी का साइन अगर सेम है, तो आर एक्स वाई विल बी इक्वल टू आर यू वी, मीनिंग अगर आर एक्स वाई 0.6 है तो आर यू वी भी 0.6 होगा। लेकिन अगर सी एंड डी का साइन ऑपोजिट है, तो आर एक्स वाई विल बी इक्वल टू माइनस आर यूवी, मीनिंग अगर आर एक्स वाई 0.6 है तो आर यूवी होगा माइनस 0.6। बैक टू द ऑब्जेक्टिव, 17 में क्या लिखा गया है, कोरिलेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई इफ वो इज इक्वल टू माइनस कोरिलेशन, माइनस कब होगा, इफ सी एंड डी आर ऑपोजिट इन साइन। और अगर इन्होंने लिखा होता कि कोरिलेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई, तो इक्वल कब होगा, व्हेन साइंस आर सेम। नेक्स्ट वन, 18th, regression equation of x on y is x minus x bar is equal to bxy y minus y bar. That is bx minus x bar is equal to bxy y minus y bar. ये तो स्ट्रेट इक्वेशन है, एप्लीकेशन है फॉर्मूला स्ट्रेट। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x होता है y minus y bar
इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। ये भी स्ट्रेट फॉर्मूला है। बी वाई एक्स का फॉर्मूला आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। आर इंटू पहले वाई है तो ऊपर वाई होगा, बाद में एक्स है तो नीचे एक्स होगा। सिमिलरली 21 बी एक्स वाई इज आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई ये भी फॉर्मूला है, इसके ये दोनों फॉर्मूला होते हैं बी एंड सी। सो आंसर इज बी एंड सी। ये दोनों फॉर्मूला होते हैं कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई में, ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, तो आंसर इज डी, बी एंड सी बोथ। 23rd, if bxy is less than 0 and byx is also less than 0, meaning both are negative. Less than 0 का मतलब नेगेटिव। तो if bxy भी नेगेटिव है और byx भी नेगेटिव है तो r क्या होगा? तो देखिए इसमें r का प्रॉपर्टी होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। r इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो सपोज अगर बी वाई एक्स सपोज है नेगेटिव हाफ और बी एक्स वाई भी नेगेटिव हाफ है, तो आंसर क्या होगा? हाफ तो होगा, पर आर का प्रॉपर्टी होता है कि इफ बोथ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर नेगेटिव तो आंसर इज ऑल्सो नेगेटिव, एंड इफ बोथ आर पॉजिटिव देन आंसर इज ऑल्सो पॉजिटिव। एंड ऐसा नहीं होगा कि एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव है। ऐसा कभी नहीं होगा कि बी वाई एक्स पॉजिटिव है और बी एक्स वाई नेगेटिव, या बी एक्स वाई पॉजिटिव और बी वाई एक्स नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कभी नहीं होगा। दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। इफ बोथ आर पॉजिटिव देन आर इज ऑल्सो पॉजिटिव, एंड इफ बोथ आर नेगेटिव देन आर इज ऑल्सो नेगेटिव। तो 23rd का आंसर, इफ बी एक्स वाई इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव एंड बी वाई एक्स इज ऑल्सो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, देन आर इज ऑल्सो नेगेटिव, आर इज लेस देन 0। नेक्स्ट वन, इफ इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन आर, इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 26 इज इक्वल टू 0। तो मैं 26 को आई जस्ट टेक इट ऑन द अदर साइड, तो वो प्लस 26 हो जाएगा। एंड सेकेंड इक्वेशन है 6x प्लस वाई, सेकेंड इक्वेशन है 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 31। देन मीन्स ऑफ एक्स एंड वाई आर, अगर हमें मीन फाइंड करना है तो रूल क्या होता है? देखिए बी एक्स और बी वाई जो लाइंस होते हैं इट इंटरसेक्स एट मीन, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो मीन होता है। एंड हाउ डू वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। हम इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। आई थिंक वी ऑल नो हाउ टू सॉल्व दिस। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, 12x प्लस 2y इज इक्वल टू 62। माइनस करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, दिस गेट्स कैंसिल्ड, 3x माइनस 12 ये हो जाएगा माइनस 9x, एंड 26 माइनस 62 हो जाएगा 36 माइनस 36। तो x इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4। अब हम x को किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ y, विल गेट द वैल्यू ऑफ y। मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 31। मैं इसमें सब्सटीट्यूट करता हूँ, 6 इंटू 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 31। तो 24 प्लस वाई इज इक्वल टू 31, वाई इज इक्वल टू 7। तो वाई इज इक्वल टू 7। तो 4 एंड 7 आंसर है, 4 एंड 7 बी। आई होप वी आर ओके विद एमसीक्यूज। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ बी एक्स वाई इज लेस देन 0 एंड बी वाई एक्स इज ऑल्सो लेस देन 0, ये हमने अभी डिस्कस किया। देन आर इज ऑल्सो, देन आर इज नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव है, बी एक्स वाई भी नेगेटिव है, बी वाई एक्स भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है तो आर भी नेगेटिव होता है। और इफ दोनों पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव होता है। और ऐसा कभी नहीं होता है कि बी एक्स वाई पॉजिटिव है और बी वाई एक्स नेगेटिव है, ऐसा कभी नहीं होगा। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स इज, वाई ऑन एक्स का इक्वेशन वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स भी लिख सकते हैं, या वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। ये दो इक्वेशन है। नेक्स्ट वन, regression equation of x on y is x is equal to a dash plus b dash y, या x minus x bar is equal to b x y y minus y bar. Third, there are dash types of regression equations. There are two types of regression equations. Correlation of x and x होता है +1, correlation of x and x होता है +1। क्योंकि x अगर x से रिलेट करेंगे तो +1 होगा, और correlation x और माइनस x करेंगे ऑब्वियसली -1 हो जाएगा। नेक्स्ट वन, सिक्स्थ, if u is equal to x minus a by c and v is equal to y minus b by d, then bxy क्या होगा? bxy is equal to, मैंने बताया था पहले x है तो हम लिखेंगे u,
फिर y है तो हम लिखेंगे v, और पहले u है तो हम लिखेंगे u इज कनेक्टेड टू c और v इज कनेक्टेड टू d। सिमिलरली ओके, ये सिक्स्थ का आंसर है। सेवेंथ का u इज इक्वल टू दिस, v इज इक्वल टू दिस, देन बी वाई एक्स इक्वल टू, बी वाई एक्स इज इक्वल टू, पहले y है तो हम लिखेंगे v, फिर x है तो हम लिखेंगे u, पहले v है तो हम लिखेंगे d, और पहले u है तो हम लिखेंगे c। देखिए, u is connected to c and v is connected to d। next one, eighth one, bxy plus byx is greater than equal to 2 मॉड्यूलस r। ये मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पे, ये फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस किया था। if byx is greater than 1 then bxy should be लेस देन 1। ये हमने डिस्कस किया था, अगेन पहले हो चुका है, ये रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीटेड है। bxy इंटू byx इज r स्क्वायर। नेक्स्ट वन, ट्रू और फॉल्स। कोरिलेशन ऑफ x टू x इज 1, ट्रू। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, नहीं ये तो y ऑन x का इक्वेशन है, दिस इज फॉल्स। दिस इज इक्वेशन ऑफ y ऑन x, पहले y है फिर x है, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ y ऑन x। नेक्स्ट वन, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज y माइनस y बार इज इक्वल टू b y x माइनस x बार, ट्रू। कोरिलेशन ऑफ x y इज इक्वल टू कोरिलेशन ऑफ y x, ट्रू। एक्स वाई से जितना एक्स वाई का रिलेशन जो होगा वही रिलेशन वाई एक्स का होगा। ये भी रिपीट हुआ है, ऊपर आया था। बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, फॉल्स। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट इट इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। ओरिजिन मतलब प्लस माइनस, चेंज मतलब मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। प्लस माइनस करने से एक्स वाई और यूवी के कोएफिशिएंट सेम रहते हैं, पर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करने से सेम नहीं रहते हैं। R is regression coefficient of y on x, false। रिग्रेशन इसको बोलते हैं, दिस इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x। R तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है। b yx इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, अगेन रॉन्ग। b yx होता है, दिस इज फॉल्स, b yx होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x। if u is equal to x minus a and v is equal to y minus b then bxy is equal to buv, true। मैंने बताया था कि प्लस माइनस से आंसर चेंज नहीं होता है। एक्स वाई के जो कोइफिशिएंट्स होते हैं और यूवी के जो कोइफिशिएंट्स होते हैं वो सेम होंगे अगर हमने प्लस माइनस किया तो, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन से चेंज होते हैं, तो दिस इज ट्रू। सिमिलरली इफ u is equal to x minus a and v is equal to y minus b then rxy is equal to ruv, true। रीजन, आर में मैंने क्या रूल बताया था? आर में रूल था, आर में कैसा रूल था? इफ u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी एंड v इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन डी, तो सी एंड डी का जो साइन है, सी एंड डी का जो साइन है, अगर वो सेम है, अगर वो सेम है तो आर एक्स वाई विल बी इक्वल टू आर यू वी। लेकिन अगर सी एंड डी का साइन ऑपोजिट है तो आर एक्स वाई विल बी इक्वल टू माइनस आर यू वी। तो इट डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ सी एंड डी। यहां पे u नाइन्थ में, नाइन्थ क्वेश्चन में u क्या है? x माइनस ए बाई 1, v क्या है? y माइनस बी बाई 1। तो दिस इज c एंड दिस इज d। c एंड d का साइन सेम है, अगर साइन सेम रहेगा तो r एक्स वाई विल बी इक्वल टू r u v, और अगर c और d का साइन ऑपोजिट होता है तो फिर r एक्स वाई विल बी इक्वल टू माइनस r u v। लास्ट वन, in the regression equation of y on x, byx represents slope of the line। yes, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। y माइनस वाई बार इज इक्वल टू byx x माइनस x बार, और सिमिलरली x माइनस x बार होता है bxy y माइनस y बार। दिस इज y on x, ये y on x इक्वेशन है और ये x on y इक्वेशन है। तो ये जो टर्म होता है ये, और ये जो टर्म होता है, दिस इज कॉल्ड स्लोप। दिस इज स्लोप ऑफ द लाइन। ये स्लोप ऑफ y on x है और ये स्लोप ऑफ x on y है। I hope you all must have understood this. With this we end the chapter. Okay, I'll stop over here.